गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो टू एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑल अबाउट किंगडम फंजाई, राइट। प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एवरीथिंग अबाउट किंगडम फंजाई दैट वी रिक्वायर। जैसे कि अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने फंजाई किंगडम में सबसे पहले जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि फंजाई किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, रिप्रोडक्शन के जनरल तरीके कौन से हैं, माइसेलिया क्या है, सिनोसिटिक क्या, सेप्टेट, असेप्टेट, ये सारी चीज़ें हमने इन जनरल पढ़ी अबाउट किंगडम फंजाई, ओके, ऑन द फर्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने किंगडम फंजाई का डिटेल में क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने, अगर आप रिकॉल करो तो सबसे पहले फंजाई को डिवाइड किया 2 डिफरेंट ग्रुप्स में, दैट इज हायर एंड लोअर, और से लोअर एंड हायर किस बेसिस पे, टाइप ऑफ माइसेलिया के बेसिस पे, मतलब वो मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक है या फिर सेप्टेट है, ठीक है ना। उसके बाद लोअर फंजाई के 2 टाइप्स हमने पढ़े, और हायर फंजाई के 3 टाइप्स हमने पढ़े, क्योंकि हायर फंजाई को फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि वेदर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमॉन्ग्स देम इज नोन और अननोन। इफ नोन देन दे आर ascomycetes and basidiomycetes, while if the sexual reproduction method is not known then we call them deuteromycetes. But even if it is a deuteromycete, it's a higher fungi on the basis of septate mycelia, right, while oomycetes and zygomycetes are what? These are lower fungi because they don't have septate mycelia, instead they have multinucleated aseptate, or you say sinusitic mycelia. That's what the classification thing. Then we discussed each of them separately, all about their reproduction, all about their structure, all about their occurrence, and important examples like Rhizopus mucor, Phytophthora, or say Penicillium. Okay, all these are the names of different fungi, even yeast, ascomycete. So सभी को हमने लास्ट क्लास तक डिस्क्राइब किया, राइट। अब नेक्स्ट किंगडम की तरफ, मतलब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया, इन 2 मेन, या हम कह सकते हैं मेजर किंगडम्स को पढ़ने से पहले हमको 1 या 2 एडिशनल टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो जिनमें से पहला है लाइकेन्स। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ 2 रिमेनिंग किंगडम्स, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम Animalia, we need to describe some topics that are associated with your syllabus and are needed to be discussed. Okay, so first amongst them is lichens. Now what you can see on the display is the definition or description for lichens. Here you can read, okay, accordingly, that lichens are slow growing, long living organisms that occur in large variety of habitats which are moist, damp, or moisture containing, okay, like tree trunks, okay, decaying logs of wood, then soil surface, bare rocks, and even ice covered surfaces. Means presence of moisture is not a necessary condition for lichens like that of fungi. Okay, so they can grow almost everywhere. I'm talking about lichens. Okay, that's why we are defining them like these are slow growing, long living organisms that occur almost everywhere, right from the tree trunks up to the ice covered surfaces of polar regions. Even if you don't find plant, even if you don't find animal, you can find lichen in even extreme habitats like polar regions. Is it okay? Now the term lichen, okay, was initially given by Theophrastus, as you can see, and you may know the fact that Theophrastus is called father of botany. Okay, like Aristotle is called father of zoology,
Theophrastus is termed father of botany. Okay, this is an additional thing. Then लाइकेन जो है वो एक अलग चीज क्यों है, इसको आप पहले समझो। फंजाई क्या है? एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म। फंजाई के टाइप्स है ना। अल्गी क्या है? एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म, अल्गी के टाइप्स है। बैक्टीरिया क्या है? एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के टाइप्स है। प्रोटिस्ट्स के टाइप्स है। अब लाइकेन जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है। ध्यान से सुनो मेरी बात। लाइकेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ना होकर लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है, जो किसके बीच पाई जाती है? तो एज यू कैन सी दे आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन अल्गल मेंबर एंड अ फंगल मेंबर। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। ध्यान से देखो, फंजाई इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, डिकम्पोजर और सैप्रोफाइटिक इन नेचर, एज यू नो ऑलरेडी। एंड अल्गी, इतना तो हमको पता ही है कि अल्गी इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इट्स अ different organism than fungi. So what I am saying is lichen itself is not an organism, a separate organism, but lichen is a symbiotic association. Do you know what symbiotic association is? Even if you don't know, I am just explaining it in brief, that in ecosystem or in environment there are different types of interactions amongst biotic components or living organisms. Like अगर कोई शेर किसी शिकार को खा रहा है तो ये इंटरैक्शन हुआ प्रिडेशन, शिकार, प्रिडेशन। ठीक है ना। अगर मैं किसी एक फूड रिसोर्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपीट कर रहा हूं तो ये हुआ कंपटीशन, फिर से एक इंटरैक्शन। यहाँ पे कंपटीशन हो रही है एक रिसोर्स के लिए। पहले केस में क्या था? एक जन मारा जा रहा है तो प्रिडेशन। तो प्रिडेशन, कंपटीशन, सिम्बायोसिस, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच नेचर में देखे जाने वाले इंटरैक्शन के टाइप्स। तो किस तरह के इंटरैक्शन को हम सिम्बायोटिक इंटरैक्शन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जिस एसोसिएशन में, मतलब जहां दो बायोटिक कंपोनेंट्स, कोई भी दो बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से अगर उन दोनों बायोटिक कंपोनेंट्स का फायदा हो रहा है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड when they interact with each other, if this is the case, then such interaction between biotic components is called as symbiotic association. Getting the thing? Now just have a look at description given in lichen कि it is a symbiotic association between algal and fungal member, right? मतलब ये कि यहाँ पे algae और fungi एक एसोसिएशन में पाए जाते हैं और एसोसिएशन में रहने से दोनों का फायदा होता है। बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड ड्यू टू द एसोसिएशन विथ ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, अब एक बात और समझ लो कि अल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड बनाने का काम अल्गल पार्टनर करता है और बनाया हुआ फूड किसे दिया जाता है या कौन ऑब्टेन करता है? फंगल पार्टनर। तो फंगल पार्टनर का फायदा क्या हुआ? उसको रेडीमेड फूड मिलता है थ्रू अल्गी, एज अल्गी इज केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इट। नाउ फंगस के साथ रहने से अल्गी का क्या फायदा होता है? क्योंकि एसोसिएशन सिम्बायोटिक है तो फायदा दोनों का ही पता होना चाहिए। फंजाई का फायदा क्या है? कि उसको बना बनाया फूड मिलता है बिकॉज अल्गी इज फोटोसिंथेटिक। अल्गी का फायदा क्या है? तो देखो, फंगल पार्टनर किसी सबस्ट्रेटम पे ग्रो होता है, राइट? और उस सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है ग्रो होने के लिए, वो एब्जॉर्ब करने का काम फंगल पार्टनर करता है और उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके अल्गल पार्टनर फूड सिंथेसाइज करता है।
मतलब सबस्ट्रेटम से रॉ मटेरियल और बाकी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वाटर एब्जॉर्ब करके अल्गी को प्रोवाइड करने का काम फंजाई का, और फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड सिंथेसाइज करके वो ऑर्गेनिक फूड फंजाई को प्रोवाइड करने का काम अल्गल पार्टनर का। तो इस तरह से लाइकेन में, किसी पर्टिकुलर टाइप के लाइकेन में अल्गल और फंगल पार्टनर एक साथ एसोसिएट होने से एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। सो वी कॉल लाइकेन एज एन symbiotic association. That's, I think this is much clearer now, right? Now अल्गल पार्टनर को फाइकोबायंट कहा जाता है और फंगल पार्टनर को माइकोबायंट। माइकोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ algae. So phycobiont is algal partner and mycobiont is fungal partner in general. Okay, and lichen is always a partnership, a beneficial partnership between an algal and a fungal partner, right? अब कौन से टाइप का फंगस या कौन से टाइप की फंजाई लाइकेन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड है? तो आप देखो कि जो माइकोबायंट है, यहाँ देखो कर्सर की तरफ, माइकोबायंट मोस्टली बिलोंग टू एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, मतलब दोनों ही हायर फंजाई। मतलब क्या हुआ इसका कि लाइकेन में पाया जाने वाला फंगल पार्टनर या तो एस्कोमाइसिट्स क्लास का होता है या तो बेसिडियोमाइसिट्स क्लास का। उसी तरह से जो अल्गल पार्टनर है वो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अल्गी होती है। अब आपको बता दूं मैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको, कि अल्गी पिगमेंटेशन के बेसिस पे मेनली 3 टाइप की कंसिडर की जाती है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। तो उसमें से लाइकेन्स के फॉर्मेशन में प्राइमरीली कौन सी टाइप की अल्गी इन्वॉल्व है? तो इट्स ग्रीन अल्गी और क्लोरोफाइसी। इज इट ओके? और फंगल पार्टनर या माइकोबायंट की बात की जाए तो एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, these are the 2 classes of fungi that are involved in lichen formation. Then lichens are highly sensitive to pollution. This is a very important question material, remember this. Lichens are highly sensitive to pollution in air. That's why lichens are used as indicator organisms. क्योंकि ऐसा है कि जहां एयर में पोल्यूशन होगा, सल्फर का और बाकी गैसेस का, जहां एयर बेसिकली पोल्यूटेड होगी, ठीक है ना, उस हैबिटेट में या उस रीजन में कभी भी लाइकेन ग्रो होती हुई नहीं दिखेगी। लाइकेन इज हाईली सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, हेंस इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। मीन्स इफ यू डोंट फाइंड lichen growing in some region, because it is a very common thing in occurrence, but फिर भी अगर वो नहीं दिख रही, इसका मतलब ये है कि air must be polluted in that region. Okay, because in polluted air like in near industries or large cities you don't find lichen often because they are sensitive to air pollution. Is it okay? So this is an important question thing, remember this point, this one, sensitive to pollution, lichens. Then जहां तक लाइकेन की जनरल बॉडी सरफेस का सवाल है वो है थैलॉइड। अब आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, फिर से एक बार बता रहा हूं। थैलस लाइक मतलब डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट, फ्लैट, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट। इमर्ज स्ट्रक्चर्स ना होने का मतलब है थैलॉइड बॉडी होना, फ्लैट बॉडी होना, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, राइट, upper surface and lower surface. That's what you call thalloid body or thallus like body. Okay, so their body is thallus like and appear variously colored due to pigmentations present. Okay, they may be greenish, reddish, bluish, yellowish, etc. or even black and brown in color. That's just for the reference कि भाई lichens का appearance अलग अलग कलर का हो सकता है depending upon pigmentation present in them. Clear? So these are what the basic facts about lichen, some more to come. Okay, like अब lichen
ऑलवेज एन एसोसिएशन बिटवीन अल्गी एंड अ फंजाई, है ना। तो फिर क्लासिफिकेशन लाइकेन का दो बेसिस पे किया जा सकता है, जिसमें से पहला बेसिस है ये रहा, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फंगल पार्टनर, मतलब जो माइकोबायंट है वो जिस क्लास को बिलोंग करता है उसके बेसिस पे लाइकेन को हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। देखो, एस्कोलाइकेंस, बेसिडियोलाइकेंस एंड ड्यूटेरोलाइकेंस। सिंपल मीनिंग है, नाम से समझ में आ जाता है, नो लॉजिक रिक्वायर्ड, कि भाई अगर किसी लाइकेन में फंगल पार्टनर या माइकोबायंट एस्कोमाइसिट्स कैटेगरी का हो तो दैट इज एस्कोलाइकेन। सिमिलरली बेसिडियोलाइकेन एंड ड्यूटेरोलाइकेन अकॉर्डिंगली विल कम। दूसरा बेसिस है लाइकेन्स को डिवाइड करने का, वो है उनका जनरल अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं जब वो ग्रो होते हैं। ठीक, अगर वो क्रस्ट लाइक पाउडरी फॉर्म में दिखते हैं, पाउडर फॉर्म में दिखते हैं, मतलब एक सॉलिड अपीयरेंस ना दिख के क्रस्ट दिखती है सरफेस पे, जिस भी सरफेस पे वो ग्रो हो रहे हो, राइट, ट्री ट्रंक हो या रॉक हो, कोई भी हो, तो उसे क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे क्या बोलते हो तुम उसको, पुराना या ओल्ड या लेस एडवांस्ड टाइप ऑफ लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। ओके, these lichens appear like a crust powder and generally found on surfaces of bare rocks, मतलब ऐसे रॉक्स जिस पे अभी तक कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है, बेयर, बैरन और ट्री ट्रंक। ये एग्जाम्पल्स जो हर लाइकेन के हमने यहाँ लिखे हैं, इनको आप जरूर याद रखना, बाकी किसी एग्जाम्पल को रखो या ना रखो, क्योंकि ये जरूरी एग्जाम्पल्स है। तो क्रस्टोज टाइप के लाइकेन्स जिनका अपीयरेंस क्रस्ट लाइक और पाउडरी अपीयरेंस है, उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये रहे, ग्राफिस एंड हेमाटोमा। ओके, यहाँ पे स्पीशीज नहीं है, एज इट इज एन एसोसिएशन, इट जस्ट हैज गॉट द नेम लाइक ग्राफिस और हेमाटोमा। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फोलियोज लाइकेन। अब ये जो फोलियोज टर्म है ये कहाँ से आती है, तो देखो याद रखो, फॉलियर, फोलियोज, ये सब मतलब लीफ, प्लांट का लीफ, फॉलिएज कहते हैं हम लीफ को, ठीक है ना। तो ये जो लाइकेन है जिसको हम फोलियोज लाइकेन कहते हैं, इट अपीयर्स लाइक अ लीफ, प्लांट लीफ, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट बॉडी हैविंग lobes in it, just like a leaf of a plant. That's why, because of the general appearance looks leaf-like, these lichens are called foliose lichens. Okay, and इनके बारे में एक और खास बात कि ये लाइकेन्स अपने सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल हो गया, रॉक हो गया, ट्री ट्रंक हो गया, जिस पे भी वो ग्रो हो रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड सबस्ट्रेटम। तो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए ये जो फोलियोज लाइकेन्स है, ये किसका इस्तेमाल करती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स का। ध्यान से सुनो, आई एम नॉट सेइंग रूट्स का, आई एम सेइंग रूट लाइक इमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स का, जिन्हें कहते हैं राइजाइन्स, नॉट रूट्स। सो विद द हेल्प ऑफ दीज राइजाइन्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, the foliose lichens remains attached to its substratum, that can be anything like right from the soil to ois to tree trunk, right? Then again comes important examples of foliose lichens. So as you can see, Parmelia and Collema, Graphis and Hematoma are important examples for crustose lichens. Likewise, Parmelia and Collema are important examples of foliose lichens. Is it okay? Then third and the most advanced type of lichen, as you can see, is a fructiose lichens. Okay, they have something different in them in comparison to previous two, that is crustose and foliose, and that different thing is they are not completely thalloid, but they have some emerged part over the surface which looks like a small shrub. shrub मतलब सूखे हुए झाड़, herb मतलब हरे भरे झाड़, छोटे छोटे और छोटे छोटे लेकिन सूखे हुए shrubs. तो these are commonly called shrubby lichens,
they have cylindrical branched thallus which gives them shrub like appearance. And additionally, what is the thing you should know, that out of the three lichens that we described on the basis of general appearance, that is crustose, foliose and fructiose, these, that means fructiose, are the most advanced ones. Is it okay? Now एग्जाम्पल की जहां तक बात है, क्लैडोनिया एंड अस्निया, इट्स नॉट उसनिया, क्लैडोनिया एंड अस्निया आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स वी कैन डिस्क्राइब फॉर फ्रक्टियोज लाइकेंस. एंड हियर वन मोर थिंग इज देयर, लुक एट द कर्सर. We said that foliose lichens are attached to their substratum through rhizines. Here you see fructiose lichens are attached to their substratum by means of mucilaginous disc. A jelly-like disc is used by these lichens to get attached to their substratum. Is it okay? Now, last part about lichens, what they do for us, or what is their importance for us, right? Because this is the primary purpose for like studying any organism by humans, कि they want to know whether an organism is useful for us or not, right? So as far as lichens are concerned, you can see that there are different uses or different, what say, important things we achieve through lichens. First amongst them is the food. As you can see, lichens like Parmelia, Lecanora etc. are edible. Edible का मतलब बता चुका हूं मैं, खाने लायक, and used either directly as food or as an additive in some food article. या तो इन lichens को डायरेक्टली खाया जाता है या किसी खाए जाने वाली चीज में एज एन एडिटिव यूज किया जाता है. एज यू कैन सी फर्दर, जो पार्मेलिया लाइकेन है, इट इज यूज्ड एज अ करी पाउडर, हर्ब्स, ओके, या तुम जिसको क्या कहते हो वो ऑरिगेनो टाइप, ओके, बनाने के लिए लाइकेन्स का इस्तेमाल होता है. उसके बाद चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज में भी एज एन एडिटिव कई कंट्रीज में लाइकेन्स लाइक पार्मेलिया का इस्तेमाल होता है. अलग अलग लाइकेन्स में एक कॉमन चीज पाई जाती है जिसको केमिकली कहते हैं लाइकेनिन. एज यू कैन सी हियर, लाइकेनिन इज अ कार्बोहाइड्रेट लाइक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट lichens, okay, and it is a nutrient material, so that when we eat some lichen, it acts as an energy source. If you go to the next use or importance, you can see that lichens like Cladonia, देखो यहीं पे गया है Cladonia, it's a fructiose lichen as far as general structure is concerned. So Cladonia or Evernia are used as fodder. Fodder मतलब जानते हो तुम, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो फीड खिलाया जाता है उसे फॉडर कहते हैं. हम जो खाते हैं उसे फूड कहते हैं, राइट? सो फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स इज नथिंग बट फॉडर. तो जैसे आपको पता होगा कि राइस स्ट्रॉ काट के दिया जाता है, हर्ब्स को काट के खिलाया जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें हैं जिससे दूध अच्छा मिलता है. तो लाइकेन्स लाइक क्लैडोनिया और एवर्निया का भी इस्तेमाल एनिमल्स के फॉडर के तौर पे किया जा सकता है. अब जाहिर सी बात है, हमारे एरिया में जो फॉडर अवेलेबल है वो खिलाया जाता है. तो दुनिया के जिन हिस्सों में फ्रक्टियोज लाइकेन्स पाई जाती है भर भर के, वहां पे उसका इस्तेमाल एज अ फॉडर किया जाता है, राइट? देन तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंपॉर्टेंस इन लाइकेन्स, Asnia and Cladonia. These are the two types of lichens which are used in production of a very important compound called asnic acid. As you can see, it is very effective antibiotic against gram positive bacteria. मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होने वाले अलग अलग डिसऑर्डर्स या डिसीजेस के लिए एज अ मेडिसिन अस्निक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमें अस्निया और क्लैडोनिया टाइप के लाइकेन से कमर्शियली ऑब्टेन होता है. देन पेल्टिगेरा इज अनदर लाइकेन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
हाइड्रोफोबिया लाइक रेबीज, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट में, मतलब हाइड्रोफोबिया में पेल्टिगेरा इस टाइप के लाइकेन का मेडिसिनल यूज होता है। जबकि पार्मेलिया जो सिर्फ एडिटिव के तौर पे ही नहीं, तो इपिलेप्सी, मिर्गी जानते होंगे आप, इपिलेप्सी की बीमारी में पार्मेलिया इस लाइकेन के तत्वों का मेडिसिनल यूज होता है। देन कुछ लाइकेन्स इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डाइज और अल्कोहल बनाने में यूज होती है। और लास्ट में एक बहुत ही हमसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंस लाइकेन का, कि ये जो रोसेला और लैसेलिया टाइप की लाइकेन्स है, अब थोड़ा नाम याद रखना मुश्किल है, बट आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ओके, एटलीस्ट इतना कि ऑप्शंस देख के समझ पाओ कि यही ऑप्शन सही है ना। तो रोसेला एंड लैसेलिया आर द लाइकेन्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर जानते हो आप कि वो एसिड और बेस नेचर पहचानने के लिए यूज किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर का प्रोडक्शन है वो एक लाइकेन की मदद से होता है, दो एक्चुअली, रोसेला एंड लैसेलिया। और लास्ट में आते हैं एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे लाइकेन के। आपको एक टर्म अगर पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता तो बताता हूं मैं, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये कि किसी बैरन एरिया पे, मतलब किसी ऐसी जगह पे जहां पे अभी तक कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ ही नहीं है, उस जगह को हम कहते हैं बैरन। ओके, जब पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है या सक्सेसफुली जिंदा रह पाता है, उसे पायोनीर स्पीशीज कहते हैं। हम हमारे आजू बाजू में दुनिया भर की अलग अलग स्पीशीज देखते हैं क्योंकि ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। हमारे सबस्ट्रेटम में, मतलब सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके प्लांट्स ग्रो होते हैं और उन प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ग्रो होते हैं। लेकिन हर सबस्ट्रेटम, हर जगह ऐसी न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती, बैरन होती है, या जहां कोई न्यूट्रिएंट नहीं है ऐसी होती है। तो ऐसी जगह पे आपको कोई भी मल्टीपल स्पीशीज नहीं दिखाई देंगी। तो ऐसी बैरन जगह पे अगर कोई पहली बार ग्रो होता है तो उसे पायोनीर स्पीशीज कहते हैं। और इसको हम लाइकेन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई सुनो कि दुनिया में ऐसे बहुत कम ऑर्गेनिजम्स है जो बैरन, न्यूट्रिएंट लेस जगहों पे जाके सक्सेसफुली ग्रो हो सकते हैं और उस जगह पे को धीरे धीरे उस जगह को न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं, और उनमें से एक है लाइकेन्स। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज देयर कि लाइकेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग वेजिटेशन ऑन सम बैरन प्लेस लाइक बैरन रॉक्स और सॉइल। That is, they are pioneer species, means first grown species in many habitats, and bring about weathering of rocks. वो rocks पे grow होते हैं पहली बार, उन rocks को धीरे धीरे प्रेशर करके तोड़ते हैं, उससे सॉइल बनाते हैं, और उस सॉइल पे फिर धीरे धीरे और भी प्लांट्स आते हैं, और भी हर्ब्स आते हैं, और एक नया वेजिटेशन, फॉरेस्ट वहाँ पे सैकड़ों हजारों सालों में क्रिएट होता है। लेकिन इसकी सबकी शुरुआत कौन करता है? पायोनियर स्पीशीज। लाइकेन उनमें से एक है जो पायोनियर स्पीशीज के तौर पे काम करते हैं। ये डायग्राम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जहां पे आपको दिखता है कि ये क्रस्ट लाइक पाउडरी लाइकेन है, क्रस्टोज, ये लिफ लाइक लोब्ड लाइकेन है, फॉलियोज, और ये थोड़ी सी इमर्ज्ड ब्रांच्ड लाइकेन है, फ्रक्टियोज। तो दिस इज क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रक्टियोज। इज इट ओके? और ये रहा हम जो बात अभी कर रहे थे उसका एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ बेयर रॉक है, कुछ भी ग्रो नहीं है। सबसे पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेगा दैट इज पायोनियर स्पीशीज लाइकेन, राइट। लाइकेन ने ग्रो करके सॉइल बनाई, उस पे छोटे छोटे एनुअल प्लांट्स, फिर पेरिनियल प्लांट्स मतलब ज़्यादा सालों तक जिंदा रहने वाले, फिर ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स, एंड फाइनली फॉरेस्ट जिनमें बहुत सारे ट्रीज होंगे। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा
वैसे वैसे नई नई स्पीशीज आएंगी और एक कम्युनिटी बनेगी। लेकिन इन सब की शुरुआत किसने की? हियर लाइकेन, पायोनियर स्पीशीज, दैट्स व्हाट वी वर सेइंग। तो ये जो डिस्कशन था अभी तक का, एक बार पीछे से आगे तक हम देख लेते हैं। लाइकेन, उसके जनरल पॉइंट्स, ओके, ये सभी 1 2 3 4 5। उसके बाद टाइप्स, पहला बेसिस टाइप ऑफ माइक्रोबायंट, दूसरा बेसिस जनरल अपीयरेंस, ये रहा एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरोलाइकेन, और इधर क्रस्टोस फॉलियोस फ्रक्टियोस। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, जिसमें ये अलग अलग नाम जैसे कि पार्मेलिया, इडिबल, क्लैडोनिया, आर्सेनिक एसिड, देन पेल्टिगेरा, हाइड्रोफोबिया। उसके बाद इधर रोसेला, लैसालिया फॉर लिटमस पेपर, एंड पायोनियर स्पीशीज वाला एक एडिशनल चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट वी नीडेड फॉर डिस्कशन ऑफ लाइकेन। ओके, आई थिंक I conveyed all the things that are required for lichen. Here we stop this lecture. In next lecture, we will move on to some discussion on viruses, viroids and prions. Okay, thank you.